Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is theory of demand. Okay. So in this chapter what we have already discussed, we have discussed simply the meaning of the concept of the demand. Next we have started the demand of a commodity, kinds of a demand, law of demand, meaning and assumptions of the law of demand. Next we have started the explanation of the law of demand with the individual demand function or the market demand function, right? Next we have discussed the demand curve and its slopes. After that, exceptions to the law of demand and what are the different so exceptions to the law of demand we have already discussed till here. So in today's class we are going to start the topic that is what are the different causes what are the different causes of the negative relation between the price and the quantity demand. Okay. So there are why does the demand curve slopes downward from left to right. Okay. So we will discuss all these things. So let's start our class with the topic what are the different causes of the negative relation between the price and the quantity. So let's get started. Okay, so the topic is here, what are the different causes of negative relation between the price and quantity demand, or why demand curve slopes down. Okay. So the topic is here, that is what are the different causes of the negative relation between the price and the quantity demanded, or why the demand curve slopes downward. So this is the topic that we are going to discuss in today's class, right? So the above answer is because of the negative relation between the price and the quantity demanded of a commodity. Actually the question asked here is asking, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, the question is why is there negative relation between the two, right? And why does a consumer behave like this? And why does consumer behave like this? So this is the basic question that is discussing, and these basic questions that are arising here, that why is there negative relation between the two, इन दोनों के बीच में negative relation क्यों होता है, and why does consumer behave like this, और consumer ऐसे behave क्यों करता है. ठीक है. So this is the basic question that we are going to discuss in this class, right? So the question, the reason कह रहा है, the reason are, so the first reason behind this is first reason is the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal
utility. So this is the first reason why the demand curve is slopes downward, or why there is negative relation between the price and the quantity demanded. Now the second, the reason behind this, that is income. Okay. Third is, that is substitution effect. So we will discuss all these one by one. हम लोग इन सारे को डिस्कस करते हैं one by one. Substitution effect. Fourth is that is size of consumer groups or market size, and the last one is, that is alternative use of the commodity. Okay, so these all are the some reason why the curve is basically the downwards slope. Okay, so let's discuss one by one. So the first one is, that is law of diminishing marginal utility. Second one is, that is income effect. Third is substitution effect. Fourth is size of the consumer groups or the market size, and the alternative use of the commodity. So let's start with the first, that is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility, right? So according to this law, when consumer consumes more and more unit of a commodity, जब कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर वो क्या करता है, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी को कंज्यूम करता है, सो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, जो भी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. किस चीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था? बेसिकली वी हैव डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. कि जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग ने यही देखा था, व्हेन मोर एंड दी मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीजिंग, जैसे ही हम लोग कोई भी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते थे तो जो भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता था, इट गोज ऑन डिक्लाइन, वो क्या करता था, डिक्लाइन करता था. ठीक है. सो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, हम कोई भी कमोडिटी की डिमांड करते हैं. सो वाई वी डिमांड फॉर दोज कमोडिटी? बिकॉज ऑफ दी टू अर्न समथिंग और टू सेटिस्फाइड समवन. ठीक, कि हम कोई भी कमोडिटी को अर्न कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ, एंड इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी. ठीक है, उस कमोडिटी की क्या होता है, उस यूटिलिटी पे डिपेंड करता है. ओके, सो ही बाइज मोर ओनली इफ ही हैज़ टू बाय लेस प्राइस फॉर इट. कोई भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को क्या करता है, ज़्यादा बाय करता है. क्यों? जब उसको उसकी प्राइस कम देनी है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, 20 से 10 हो जाती है. ठीक है, जब वो प्राइस 10 से 20 हो जाती है, सो व्हाट वी प्रेफर वी परचेज द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी मोर एंड मोर. हम उन कमोडिटी की यूनिट्स को ज़्यादा डिमांड करते हैं ना, करते हैं. ठीक है, एंड बाय लेस इफ़ ही हैज़ टू पे मोर प्राइस. और उस केस में वो बाय, अगर प्राइस उसकी कम हो जाती है तो हम लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, प्राइस उसकी बढ़ जाती है तो डिमांड हम
देखा है. So for it, because price that a consumer is willing to pay for a commodity, it should be equal to its marginal utility. ये इसीलिए होता है बिकॉज कोई भी कंज्यूमर अगर कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, इफ ही हैज़ और शी हैज़ गिवन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी 20, so he also assume or he also expect that the marginal utility after consuming those commodities should be equal to the price of the that commodity. ठीक है, वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसको एक्सपेक्टेशन, जो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कमोडिटी को कंज्यूम करने की, वो उससे क्या होना चाहिए. तो प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एनी, राइट. सो P is equal to the marginal utility. So that's why if there is a negative relation or the inverse relation between both of them, इन दोनों में इसीलिए क्या होता है, inverse relation, right. So this is the first one, that is law of diminishing marginal utility. यहाँ पे होता है P is equal to mu. और जब भी कोई भी commodity की price increase होती है तो demand of those commodity will be decrease, and if the commodity the price decrease होती है and the demand of the commodity will be increase. क्यों ऐसा? बिकॉज हमारी जो डिमांड है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, टोटली डिपेंड्स ऑन अपॉन दी यूटिलिटी, मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द एनी कमोडिटी. इस पर पूरा टोटली डिपेंड करता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट रीजन behind the negative relation between the price and the quantity demanded, that is income effect. इनकम, ओके. सो इनकम इफेक्ट क्या कहता है? इनकम इफेक्ट सेज, बेसिकली इसमें जो भी हम लोग इनकम इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इट इज based on the real income of the consumer, and real income of the consumer deals with the purchasing power. Okay? Purchasing power. Purchasing power means कि the money, वो जो मनी और वैल्यू ले रहे हैं, जो मनी के टर्म्स में ले रहे हैं मनी, उस कमोडिटी की, उस वैल्यू की, उस प्राइस की कितनी पावर है कि हम लोगों को क्या है वो सेटिस्फेक्शन देती है. फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ द मैगी इज़ ओनली 10 रुपीज़, राइट. प्राइस क्या थी मैगी की? वो क्या थी? 10 रुपीज़ थी. बट अब प्राइस जो है मैगी की वो क्या हो गई है? 10 से 12 हो गई है. सो ध्यान दीजिएगा, if the price of the Maggi is, priorly it was only just 10 rupees, but now the price of the Maggi increase up to the basically the 12 rupees. तो अब हमारा कोई भी कंज्यूमर, उसके पॉकेट से क्या हो रहा है? वो सादा रुपया जा रहा है, सादा पॉकेट से मनी जा रहा है. तो हमारी पावर क्या हो गई है? रियल इनकम और परचेजिंग पावर क्या हो गई इंडिविजुअल की? वो कम हो गई है. क्यों? क्योंकि पहले वही कमोडिटी हमें 10 रुपीज़ में मिल रही थी, अब सेम कमोडिटी के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ रहा है ना. अब हमें ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ रहा है, 2 एक्स्ट्रा में हमें देना पड़ रहा है. ठीक है. तो ये 2 रुपीज़ तो हमारी पावर क्या हो गई? परचेजिंग पावर फॉल कर गई. जैसे ही प्राइस हमारी 10 से 12 हुई, परचेजिंग पावर हमारी कम हो गई. अब हम मैगी का कंजप्शन भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे. क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए क्या हो रही है? कॉस्टलियर हो रही है. So this is the income effect. You can also study in the book also. So it shows that it is the effect of the change in quantity demanded. ये किस में चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में. when the real income of a buyer changes due to change in the price of the commodity. कि जब रियल इनकम परचेजिंग पावर किसी भी बायर की चेंज हो रही है. क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है. सो फॉल इन प्राइस अगर फॉल करती है, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द रियल इनकम. अगर प्राइस फॉल कर जाएगी, मतलब प्राइस अगर 10 से 8 हो जाएगी, तो हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब सेम मैगी हमें 8 रुपीज़ की मिल रही है और हमारे पास 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहा है. अब उन 2 रुपीज़ से हम 2 टॉफ़ी भी कंज्यूम कर सकते हैं, 2 इक्लेयर्स ले लिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है. प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो परचेजिंग पावर इज इंक्रीज. सो दिस इज़ द इनकम इफेक्ट
for that, and this is the reason for the negative relation between the price and the quantity. ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होने का ये भी क्या है, एक फैक्टर होगा. ठीक है, नाउ द थर्ड इफेक्ट. थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड इसका रीजन. द थर्ड रीजन इज substitution. Substitution effect. Okay. So substitution effect क्या कहता है? Substitution effect कहता है कि when the any commodity is substitute with the another commodity. एक commodity दूसरे commodity से क्या होती है, substitute होती है. ठीक है, कोई भी consumer क्या है, for example if he or she is consuming the tea, ठीक है, तो वो क्यों एक टी की जगह पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी का कंजप्शन स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ द सब्सटीट्यूट. इसकी टी को हम लोग ने सब्सटीट्यूट किसके साथ कर दिया, कॉफ़ी के साथ कर दिया. ठीक है, दोनों ही क्या हम लोग बेवरेजेस में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, और दोनों को ही क्या है कि हाँ. अब बात आती है कि क्यों कोई भी कंज्यूमर टी से कॉफ़ी की ओर शिफ्ट हो रहा है. कोई तो रीज़न होगा ना इसके पीछे कि हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि टी, अभी टी नहीं पीना मेरे को, अब हम लोग को कॉफ़ी पीना है. तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, दैट इज़ द प्राइस. हम सबसे पहले प्राइस को देखते हैं. कभी भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई भी ड्रेस मटेरियल, क्लोथ्स देखते हैं, कोई भी न्यू कमोडिटी को देखते हैं जिसका हमको कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका क्या पूछते हैं, इसका प्राइस कितना है ना. तो कोई भी डिमांड ऑफ द कमोडिटी, हम कोई भी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी. उसकी प्राइस कितनी है ये उस पर टोटली वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब देखिए आप, तो ये कह रहा है कि इफ़ कॉफ़ी वुड मोर सब्सटीट्यूट ऑफ अ टी, सो अकॉर्डिंगली डिमांड ऑफ ए कॉफ़ी विड फॉल. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज़ कॉफ़ी. ठीक है, अब अगर क्या है, जो प्राइस है कमोडिटी कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होगी. ठीक है, सो वुड कॉज मोर सब्सटीट्यूशन ऑफ अ टी. प्राइस कॉफ़ी की इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस बढ़ेगी कॉफ़ी की. So every individual is not able to afford the price of the coffee, then he or she will shift to the another commodity, another substitute goods, and here the substitute goods are the tea. ठीक है, प्राइस बढ़ी कॉफ़ी की तो हम लोग क्या थे, टी पे शिफ्ट. तो प्राइस बढ़ी किसकी, टी की, और यहाँ पे प्राइस बढ़ी है टी की, एंड द कॉफ़ी विच कॉज मोर सब्सटीट्यूशन ऑफ ए टी. कॉफ़ी क्या है, ज़्यादा सब्सटीट्यूट कर रहा है टी को, एंड द डिमांड ऑफ द कॉफ़ी वुड फॉल. प्राइस बढ़ी कॉफ़ी की, डिमांड कॉफ़ी की क्या हो गई, कम हो गई, और क्वांटिटी जो डिमांड है वो किसकी इंक्रीज़ हो गई, टी की इंक्रीज, एंड द वाइस वर्सा. ठीक है, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कॉफ़ी डिक्रीज़ होगी तो हम लोग किसको क्या करेंगे, किसका कंजप्शन हम लोग ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाएगी तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर भी किसको करेंगे, कॉफ़ी को. ठीक है, एंड दिस इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. नेक्स्ट वन इज दैट इज साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और द मार्केट साइज. तो जैसे ही किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, फॉल करती है. ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी फॉल्स, so it leads to the increase in the size of the consumer. Let's take one example. So अभी जब भी इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स को एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ उसको अगर हम समझते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट ईजियर. वो हमें समझना थोड़ा ईजी हो जाता है कि हम ईजिली कोई भी कंसेप्ट को समझ लेते हैं. ठीक है, तो जैसे देखते हैं, ओके, एक कमोडिटी है, क्या ले सकते हैं, यस, वी कैन टेक वन मार्कर. दिस मार्कर. तो 2 शॉप्स हैं एक एरिया में, जैसे सिगरा पे 2 शॉप्स हैं. सिगरा पे 2 साइड में एडजेसेंट में 2 शॉप्स हैं. एक इस मार्कर की प्राइस को 25 में दे रहा है. ठीक है, एक जो वो है रिटेलर है वो इसकी प्राइस को 25 में दे रहा है, और सेकंड वाला जो शॉपकीपर है वो इसी सेम मार्कर को 30 रुपीज़ में
25 रुपीज़ में, और एक दे रहा है 30 रुपीज़ में। ठीक है, मतलब एक जो रिटेलर है, रिटेलर 1 और रिटेलर 2, एक इस मार्कर की प्राइस को लगा रहा है 1 यूनिट 25, सेकेंड वाला लगा रहा है 30 रुपीज़। सो एज अ कंज्यूमर, एज यू नो वी ऑल आर कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर हम किसको ज़्यादा डिमांड, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अगर हम लोग कंज्यूमर हैं, सेम, ऐसा भी नहीं कि कुछ डिफरेंस है कि ये जो मार्कर है वो 1 मंथ चलेगा, दूसरा वाला मार्कर 2 मंथ चलेगा, तब तो हम लोग देखेंगे ना कि अरे नहीं, ऐसे क्या है कि हम लोग को ये वाला मार्कर भले हो बट ये 2 मंथ्स चल रहा है, तो वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट सेम मार्कर, सेम उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वो दोनों में ही हैं। उस केस में 25 और 30 वाले में हम कौन सा प्रेफर करेंगे? वी प्रेफर 25 रुपीज़ वाले को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज अ कंज्यूमर। तो प्राइस कम हुई 20, इन दोनों में प्राइस अगर इसकी कम होगी तो इसका डिमांड इस वाले रिटेलर, इस वाले शॉपकीपर के यहाँ डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हो गई। अब कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर ग्रुप, जो भी हम लोग कंज्यूमर हैं, हम सारे ही लोग उसी के पास जाएंगे कि अरे नहीं वो तो, फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को भी बताएंगे अरे नहीं, और सारे टीचर्स को कि ये जो मार्कर है ना वो उसके यहाँ 25 में मिलता है। अच्छा, देन इसकी मार्केट साइज बढ़ गई, कंज्यूमर ग्रुप्स बढ़ गए, प्राइस कम हुई, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो गई, और कंज्यूमर जो ग्रुप है, कंज्यूमर ग्रुप भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कंज्यूमर। सो ये क्या शो कर रहा है, दैट इज इनवर्स रिलेशन। प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर ग्रुप कम हो जाएगा, प्राइस के कम होने से कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज। ठीक है, अब इसके साथ देखते हैं 30 रुपीज़, इसकी तो प्राइस इसके कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी जो डिमांड हो जाएगी वो कम हो जाएगा। इसका जो कंज्यूमर ग्रुप है इट विल आल्सो बी फॉल। ठीक है, तो यही हो गया आपका साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और द मार्केट साइज। क्या था फोर्थ था आपका, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स और मार्केट साइज। ठीक है, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और द मार्केट साइज। नाउ द लास्ट वन इज, दैट इज, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया अभी। लास्ट क्या है, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द कमोडिटी। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द कोई भी कमोडिटी का क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है। ठीक है, सो कह रहा है इसमें दैट इज इफ अ कमोडिटी इज हाईली प्राइस्ड। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, तो हमारे यहाँ घर पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लाइफ सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है और जो रेट है जो हम लोग पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस यूनिट से, वो यूनिट अगर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, पहले 10 पर यूनिट था, अब वो रेट क्या है 10 से 20 पर यूनिट। सो डिमांड इसकी क्या हो जाएगी, अब हम लोग के घर में पेरेंट बोलेंगे बेटा सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब बोला जाएगा कि एक रूम में ही सोते हैं हम लोग, जो अलग अलग रूम में आप लोग सब लोग सो रहे थे, अलग अलग रूम में स्टडी कर रहे थे, अभी आपको सेम रूम में ही रहना है। तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हम लोग सेविंग्स, अब इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने लगे। अब जैसे ही अभी जो रेट था 10 था पर यूनिट, अब हो गया 5 पर यूनिट। तब क्या है, अब आपको घर में लीनियंसी मिल गया, लीनियंट हो गया पेरेंट भी कि ठीक है अब तो बिल भी कम भी आ रहे हैं, आप लोग क्या है अलग अलग भी पढ़ लो, अगर आप लोग को पढ़ना है तो अलग अलग भी पढ़ लो, जहाँ पे कंसंट्रेशन हो आपका वहाँ पढ़ लो, फ़ैन भी। तो ये क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस हमारी कम। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ दी ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव यूज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर
all there are different causes or the negative relation between the price and the quantity. यही सारे different क्या हैं आपके causes है negative relation के किसके price और quantity demanded के और why the demand curve slopes downward. ये जो demand curve है वो downward क्यों slow उसका होता है. ठीक है. So first क्या था आपका only because of the law of diminishing marginal utility. Second one is that is income effect. Third is that is substitution effect. Fourth one is size of the consumer group, and the fifth one is alternative uses of the commodity. Okay. Now the next topic that we are going to discuss, that is demand functions, factors affecting demand, and what are the different determinants of the demand. कि डिमांड के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. functions or factors affecting demand, or we can say that, or determinants of the demand. Determinants of the demand. Okay. सो कह रहा है डिमांड फंक्शन. देखिए हमें पता है डिमांड फंक्शन क्या शो करता है. इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. कि जो भी प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन को शो करते हैं. ठीक है. सो इट गिव्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स फैक्टर. ठीक है. जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं और जो भी डिमांड है उनके बीच में क्या ये करता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है. ठीक है. फिर कह रहा है इट इज ऑफ टू टाइप्स. डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. And the last one, second one is market demand function. Okay, so two kinds of the demand function: individual demand function and the market demand function, right? So अब individual demand function में हम लोग देखते हैं. ये देखा था that is हम लोग ने पढ़ा था demand of the X commodity is the functional relationship with the price of the X commodity, price of the related goods, income of the consumer, taste and preference of the consumer, and the expectation about the price in future. ये things that we have already discussed. ये हम लोगों ने पढ़ लिया है. डिमांड फंक्शन क्या है. यहाँ पे देखा था मार्केट डिमांड फंक्शन में. So demand is the function of price of the X commodity, price of the related goods, income of the consumer, taste and preference, expectation about the price. Next term, that is distribution of income, size of population, and the one is more season and climate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. ये हम लोगों ने देखा था. क्या देखा था? दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस इन द फ्यूचर. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज मार्केट डिमांड फंक्शन. So dx is the function of the price of the x commodity. X commodity means कि जो भी commodity इसकी price क्या है,
प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस फ्यूचर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज क्या है, एंड द सीजन एंड द क्लाइमेट. ओके, सो दीज ऑल आर दी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द मार्केट डिमांड फंक्शन. ठीक है, तो इन सारों को हमको क्या करना है कि डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी का रिलेशन हम प्राइस के साथ पढ़ेंगे, डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी का प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, डिमांड का इनकम के साथ, डिमांड का टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ, डिमांड का एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस इन फ्यूचर, और ये सारा कुछ कॉमन है. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिमांड का, डिमांड फंक्शन और नेक्स्ट पॉपुलेशन का, एंड द लास्ट डिमांड ऑफ द फंक्शन एंड द सीजन एंड द. So one by one we will discuss all these things. So it's all about your today's class. We will continue this topic in the next class.